everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss about acids and their properties. If we ask what is an acid, then I have already told you about this, that acid is a substance which are sour in taste. Now, on the basis of their taste or existence, we have categorized them into two major categories, that is what organic acids and mineral acids. Now, what are organic acids? Organic acids are those acids which are found in plant materials and animals are known to be as organic acids. Here are few examples of organic acids. First one is acetic acid. Acetic acid is found in vinegar. Now, the second is citric acid. Citric acid are found in citrus fruits like lemon, orange, etc. Third is your lactic acid. Lactic acid are present in curd. Now, fourth is tartaric acid. Tartaric acid is present in tamarind or unripe grapes. Fifth one is oxalic acid. Oxalic acid are found in tomatoes. Sixth one is formic acid. Formic acid is found in ant sting. Now, what you observe whenever an ant bites you, right? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं जब एक चींटी आपको काटती है? जिस एरिया में उस चींटी ने आपको काटा है, you find an irritation on that area. It is because of the formic acid that is released from the ant stings. And one more thing, an ant never bites you, it stings you. एक चींटी कभी नहीं काटती, वो आपको डंक मारती है और उसी डंक से वो क्या रिलीज करती है? फॉर्मिक एसिड. एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड इन इट्स स्टिंग, दैट एरिया causes irritation where the ant has stinged you. Okay, now the next category of acid is mineral acids. All those acids which are prepared by the man is known to be as mineral acids. Mineral acids are man-made acids, so you can also call them as inorganic acids. First most common mineral acid is hydrochloric acid, second is sulfuric acid, third is nitric acid, and the fourth one is carbonic acid. You must have known, or you people are familiar that all these acids are harmful in nature. It means what? All mineral acids are harmful in nature. It means that कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड की बात करें तो ये सारे एसिड्स को हम लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन पर्पस, एंड दीज ऑल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक्सेप्ट carbonic acid. Carbonic acid is a weak acid. Now, what I have told you that all mineral acids are strong acids except carbonic acid. Carbonic acid is a weak acid. यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि all organic acids are weak acids because ये harmful नहीं होते हैं. They can be eaten, they can be used easily in your daily life, right? तो क्या बताया मैंने आपको कि ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड एंड ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक्सेप्ट कार्बनिक एसिड. कार्बनिक एसिड इज द एसिड विच आर यूज्ड इन योर सॉफ्ट ड्रिंक्स. आप जो भी कोका कोला, मिरिंडा, फैंटा पीते हैं उसमें जो एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज योर कार्बनिक एसिड. So all organic acids are weak acids and all mineral acids are strong acids except carbonic acid. Carbonic acid is the mineral acid but though it is weak in nature. So इससे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है या एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है कि which acid is a mineral acid but still it is weak in nature. So your answer will be carbonic acid. Now, after this, we will discuss the properties of an acid briefly. Okay, dear students, now let's talk about the properties of an acid. अगर हम किसी एसिड के प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी इज ऑल एसिड्स आर sour in taste. That is what acids have a sour taste. फिर नेक्स्ट इज what? They turn blue litmus to red.
येस डेफिनेटली, ये बात हमने अपने इंडिकेटर वाले लेक्चर में ही क्लियर कर ली थी कि सारे एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. Now the third property is acid solutions conduct electricity. That means what? कि all acids are electrolytes. Now what are electrolytes? Electrolytes or electrolytic solutions are solutions which have the capability to conduct electricity. अगर आप किसी भी acid solution में electricity conduct करने की कोशिश करेंगे तो definitely they will conduct electricity. Now why they will conduct electricity? इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हम यहाँ पर इस लेक्चर में सिर्फ एसिड के 4 प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस कर रहे हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी प्रॉपर्टीज को भी एसिड्स की ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं और उस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाई एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Okay, so in this lecture what you have to know is that acid solutions conduct electricity. All acid solution conducts electricity. It means that they are electrolytes. Now fourth property is acids react with metal to form hydrogen gas. इस रिएक्शन के बारे में आपने ऑलरेडी अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है. हमने देखा था कि जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट वो हमें सॉल्ट देता है as well as hydrogen gas is released. So here is the generalized form of the reaction. A metal is reacting with an acid to give product in the form of salt as well as hydrogen gas. Now the question arises, how does you know that वहाँ से जो गैस इवॉल्व हो रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है and not at all ऑक्सीजन और एनी अदर गैस. तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के मदद से जानते हैं कि वहाँ से जो गैस निकल रही है दैट इज अ हाइड्रोजन गैस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रिएक्शन देखते हैं. इस रिएक्शन को आपने ऑलरेडी बहुत बार अपने फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है, बट स्टिल यहाँ पर हम इन द फॉर्म ऑफ मेटल हम यूज कर रहे हैं जिंक को. जिंक इज इन इट सॉलिड स्टेट और जब जिंक को मैंने रिएक्ट करवाया किससे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वहाँ पर मुझे इन द रिजल्ट एज अ रिजल्टेंट मुझे क्या मिला, जिंक सल्फेट दैट इज व्हाट सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से इवॉल्व हो रही है. सो दिस इज द जनरलाइज्ड रिएक्शन. एक जनरल फॉर्म है रिएक्शन का कि जिंक को जब मैंने हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तो मुझे इन द फॉर्म मेटालिक सॉल्ट मिला दैट इज व्हाट, दैट इज योर जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड और लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि जब हम किसी मेटल और एसिड के बीच रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसमें से जो गैस इवॉल्व हो रही है दैट गैस इज योर हाइड्रोजन गैस. लेट्स सी, हियर वी हैव द सेटअप. हमने एक सेटअप बनाकर रखा हुआ है. यहाँ पर स्टैंड है. स्टैंड में हमने बॉइलिंग ट्यूब को अटैच किया हुआ है एंड हियर इन दिस बॉइलिंग ट्यूब हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है और जिंक ग्रैन्यूल्स. जिंक ग्रैन्यूल्स आर व्हाट, बेसिकली वो जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि इस बॉइलिंग ट्यूब में फिल्ड है. अब क्या हो रहा है कि इसमें से जो भी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर एज इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा जो कि जिंक सल्फेट के फॉर्म में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट यहाँ पर उसका फॉर्मेशन हो जाएगा. प्लस यहाँ से जो गैस इवॉल्व हो रही है वो इस ग्लास ट्यूब के थ्रू इस सॉल्यूशन पर आ रही है. यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, ये एक टब जैसा सब्सटेंस है, कंपोनेंट है जिसको हम ट्रो बोलते हैं, ट्रो. तो ट्रो में हमने क्या डाला हुआ है, सोप सॉल्यूशन. अब क्या हो रहा है कि यहाँ से जो गैस इवॉल्व हो रही है, इस रिएक्शन से जो गैस आ रही है वो इस ट्रो में जाकर, क्योंकि ये सोप सॉल्यूशन है तो यहाँ से जो है वो सोप के जो बबल्स हैं वो निकल कर आ रहे हैं. बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ से हम गैस सप्लाई कर रहे हैं. गैस सप्लाई करने की वजह से
क्या हो रहा है कि ये जो सोप सॉल्यूशन है वो सोप बबल्स क्रिएट कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर क्या हुआ, जब हम इस बबल्स को कैंडल के बर्निंग कैंडल के प्रेजेंस में लेकर आए तो यहाँ पर ये जो बबल है, हाइड्रोजन गैस जो है वो एक पॉप साउंड क्रिएट करेगी, मेकिंग अ लिटिल एक्सप्लोजन। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन गैस? हाइड्रोजन गैस क्या करती है, अगर वो बर्निंग कैंडल के प्रेजेंस में या किसी भी बर्निंग फ्लेम के प्रेजेंस में आती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड विद अ लिटिल एक्सप्लोजन। दिस इज द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर वहां पर ऑक्सीजन गैस होता या कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती तो वहां पर वो पॉप साउंड नहीं आता। सो दिस इज हाउ वी प्रूव कि जब किसी मेटल और एसिड के बीच रिएक्शन होता है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि प्रूव दैट जब मेटल और एसिड के बीच रिएक्शन होता है तो उसमें से जो गैस इवॉल्व होती है दैट इज द हाइड्रोजन गैस। नाउ आई विल एडवाइज यू टू टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ताकि आप अपने लेक्चर्स में या अपने नोट्स में इसको ड्रॉ कर सकें और इसका एक ब्रीफली प्रोसीजर लिख सकें। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एसिड्स की बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। टिल देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।